Okay, so hi everyone. Let us begin with today's webinar. I'm Aradhika Sabharwal, and today I'm going to be talking about parenting stress, burnout, and mental load. But before we begin, I would like to start with a brief introduction of each other. So I'll begin first. I'm a counseling psychologist and RCI trainee rehabilitation counselor. I have 1+ years of experience wherein I help clients deal with issues such as anxiety, stress, grief, trauma, relationship issues, adjustment, emotional and behavioral issues, and work towards inner child healing as well. Today I'm here with Parent Eva because I deeply resonate with their mission, where they, want to bring together a community of parents, where everybody can just connect with one another from different backgrounds, social, economic, and 8 different age groups as well, where everybody can come together, share their experiences, others' experiences, and gain some sort of insight and understanding as to what other parents are going through and maybe get some guidance or help from others about the issues that they may have been facing. Not just this, I really like the idea of where Parent Eva, aims to help parents get in touch with resource persons like counselors and psychologists such as myself who can, guide parents one on one regarding any issues that they may be facing or, that their child may be facing. So I think that the whole mission and vision of Parentiva is something that I really recognize, and I hope that this builds a huge community of parents where everybody can feel helped in some way or the other. Now, I would really request all of you if you can, just unmute yourself or type in the chat box a brief introduction about yourself. Hello everyone. I am Gurmeet Kaur, co-founder of Parenteva. जैसे पेरेंटेवा के बारे में आराधिका ने बताया है, मैंने अपने बेटे के साथ इंद्रप्रीत के साथ ये कंपनी स्टार्ट की है ताकि पेरेंट्स और जो बच्चे हैं उनके बीच में कनेक्टिविटी और जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग हो सके. Thank you for sharing, ma'am. Anybody else, if you would just like to briefly introduce yourself? You can either type in the chat box as well if you're not comfortable in muting yourself. इससे बाकी पेरेंट्स को भी थोड़ा सा होगा कि और कौन कौन है मीटिंग में जस्ट a little thing to get started. Okay, no problem. You have network problems, that's okay, completely understandable. Okay, so Maitri ma'am writes, I am Maitri, I'm a pet parent. Oh wow, that's really nice. Thank you so much for joining us today. Okay. Um, okay, so let's do one thing. Deepti ma'am, would you like to add anything? Just introduce yourself, anything? Okay, so let us begin with the webinar. So today's topic is parenting stress, burnout, and mental load. Okay, so first, I would like to start with a very simple question from all of you. How many times, like, have you ever felt very exhausted? You're completely tired, no matter how much you love your child. Been so exhausted and tired that you feel like I just want to give up. ऐसी feeling कभी भी any of you has ever experienced that? You can unmute yourself, type in the chat box, anything. Like even once, have you ever felt this? Simple yes or no would also work. एज ए पेरेंट मैंने ये काफी बार फील किया है. कई बार बच्चे जब हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होते या कई बार उनको समझने के लिए तैयार नहीं होते कि अगर चाहे हम स्टार्टिंग में 2-3 बात प्यार से बात कर भी दें, समझा दें, इवन देन जब वो रिएक्शन उनका ऑपोजिट आता है तो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है. तो तब लगता है कि शायद हमारी बात बच्चे समझ नहीं पा रहे. हाँ जी, वेरी वेल पॉइंटेड आउट. जब बच्चे बात नहीं सुनते हैं या बात समझ नहीं पाते हैं तो कई बार ना बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड और टायरिंग फील होने लगता है और कई बार गिव अप करने का भी मन करता है. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग मैम. एनीबडी एल्स, इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू शेयर अपना कुछ एक्सपीरियंस या जस्ट yes or no would also work. Do you ever feel tired of completely exhausted and थक जाते हो? Anybody?
Deepti ma'am, Maitri ma'am, anybody? Pavan, Puneet ma'am, if you would like to add anything. Okay, let's do one thing. On a scale of 1 to 10, ठीक है, हमारे पास एक स्केल है, यहाँ 1 है, यहाँ 10 है. दिस वीक आप में से कितनों ने टायर्ड फील किया है कभी भी? 1 या 10 आपकी रेंज है. 1 सबसे कम टायर्ड की बहुत ज्यादा टायर्ड या बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड नहीं, एंड 10 बीइंग बहुत एग्जॉस्टेड एंड कंप्लीटली गिविंग अप. आप लोग एक बार चैट बॉक्स में जस्ट जीरो से लेकर 1 से लेकर 10 तक कोई भी आपको लगे कि 0 अगर आपने बिल्कुल ही टायर्ड फील नहीं किया. Maitri ma'am writes 7. Thank you so much for sharing, ma'am. Anybody else? Okay, Pavan Puneet ma'am says 5. So almost there, she has felt stressed. Anybody else? Would you like to just add in? Simply आप एक number डाल सकते हैं chat box में. It would help other parents to also know that कोई भी अकेला नहीं है. Everybody gets this feeling. Like जैसे गुरमीत मैम ने शेयर किया, Maitri ma'am and Pavan Puneet ma'am have also shared, अपना stress level. Okay. ओके, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इवन दो पेरेंटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग थिंग्स, वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग जर्नीज, it can still be very stressful and exhausting, especially for parents, right? But the important thing over here to remember is that you guys are not alone. हमें यहीं पे पता चल रहा है that आप लोग अकेले नहीं हैं. Other people are also going through the same feelings, same exhaustion. हो सकता है सबका exhaustion या stress level कम ज्यादा हो, but everybody is experiencing these feelings. Now, let us try to understand कि पेरेंटिंग स्ट्रेस क्या है, क्यों है और कहाँ से आ रहा है. ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज पेरेंटिंग स्ट्रेस? आप में से कोई बताना चाहेगा उनको क्या लगता है कि व्हाट इज लाइक पेरेंटिंग स्ट्रेस? इज अ वेरी डिफरेंट वर्ड. क्या मतलब है इसका? कोई भी, देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर्स. कुछ भी आप लोग बताना चाहे. तो मेरे अकॉर्डिंगली कि जब पेरेंट्स को जो स्ट्रेस आता है, ज़्यादातर ये नहीं है कि सिर्फ बच्चों की तरफ से ही आना चाहिए. कई बार बच्चों के साथ जो प्लस एक्स्ट्रा काम होते हैं, कई बार उन्हें हमें एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि बच्चों की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चों की अपनी डिमांड्स होती हैं, कई बार उन्हें अपना पेरेंट्स का टाइम चाहिए होता है. लेकिन एज ए पेरेंट या और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की होती हैं, जिसकी वजह से कई बार पेरेंट्स बच्चों की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाते या उतना टाइम नहीं दे पाते. तो जो बच्चों की एक्सपेक्टेशंस हमारे साथ होती हैं, उसकी वजह से बच्चों का अलग से प्रॉब्लम आ जाती है, और जो पेरेंट्स है वो मेंटली थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि हम सभी काम एक तरह से ठीक तरीके से नहीं कर रहे, शायद हमसे हो नहीं रहा. तो उसकी वजह से हाँ जी, स्ट्रेस कह लो या मेंटली टायर्डनेस कह लो, ये फील होनी शुरू स्टार्ट हो जाती है. वेरी वेल सेड गुरमीत मैम. आपने एकदम करेक्ट पॉइंट दिया है. एग्जैक्टली व्हाट आई वाज गोइंग टू से. पेरेंटिंग स्ट्रेस इज नॉट जस्ट जो पेरेंटिंग सिर्फ बच्चों की वजह से नहीं, बट एवरीथिंग दैट कम्स अलोंग विद बीइंग अ पेरेंट, उसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है, टायर्डनेस, एग्जॉस्शन है. यस पवन पुनीत मैम. It's also because sometimes parents feel that we have to do perfectly, parenting perfectly. Like, are we doing it in a right way or in a wrong way? So they just have so many shoulds in their life that they should always do this. So that's why they get exhausted and stressed. There comes a certain time. एब्सोल्युटली, Yeah. यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम. इसी को कहते हैं हाई एक्सपेक्टेशंस. पेरेंट्स ऑफन अपने आप से हाई एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, और वो इस लेवल की एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि वो हर टाइम मीट नहीं कर पाते. When this happens, उनको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होने लगता है. उनको लगता है मे बी आई एम नॉट अ गुड पेरेंट, या मैं सब नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ जो मैं अपने बच्चों के लिए करना चाहता हूँ. बिकॉज ऑफ दैट अगेन स्ट्रेस आता है. मैथ्री मैम राइट्स empty nest syndrome, thoughts like I am a bad parent, not to know how to handle tantrums. Very rightfully said ma'am. So बाकी सबको मैं एक बार बताना चाहूंगी. empty nest syndrome is basically जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, एंड या अगर छोटे भी होते हैं, they're not staying at home with you, या वो घर से बाहर रहते हैं. हम लोग पेरेंट्स इतना सारा टाइम पेरेंटिंग में इन्वेस्ट करते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है आफ्टर अ टाइम जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, दे डोंट नीड द पेरेंट्स एनी मोर उतना ज्यादा. स्पेशली जब बच्चे कॉलेज चले जाते हैं या हॉस्टल चले जाते हैं पढ़ने के लिए, या शादी करके समटाइम्स दे मूव आउट टू डिफरेंट हाउसेस, या वर्क के लिए भी. तो उससे क्या होता है, पेरेंट्स फील कि उनकी लाइफ में बहुत बड़ा पोर्शन सडनली चला गया है, बिकॉज दिस इज देयर लाइफ.
like 90% of it is being a parent, right? Like अगर ये life है, इसका ये सारा पोर्शन इज बीइंग अ पेरेंट, एंड वो जो बचा हुआ 5 या 10% होता है ना, सिर्फ उतना ही जब उनके पास रह जाता है ना, तो फिर उनको लगता है मेरी लाइफ में क्या रह क्या है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस, एंजाइटी एंड ऑफन डिप्रेशन। ये ज्यादातर ओल्ड एज पेरेंट्स में देखा जाता है, बट इक्वली फॉर मिडिल एज पेरेंट्स, जब उनके बच्चे घर से चले गए हैं, या इवन यंग पेरेंट्स जब बच्चे छोटी एज में हॉस्टल जाके पढ़ रहे हैं। So, all of these things, जैसे मैत्री मैम ने पॉइंट आउट किया, थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली, कि जब पेरेंट्स से बच्चे दूर हो जाते हैं, चाहे किसी काम से और एनीथिंग, उससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है पेरेंटिंग स्ट्रेस में ऐड करने के लिए। एंड जैसे पवन मैम, गुरमीत मैम और मैत्री मैम ने ऐड किया है, परफेक्शनिज्म, हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ, पूरा टाइम अपने बच्चे जब हमारी बात नहीं सुनते हैं तो वो फील होना कि वो इमोशनल डिस्टेंस हमारा बच्चों से बन रहा है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, प्लस जो एक्स्ट्रा चीजें आ जाती है ना एज अ पेरेंट की, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, विच इज अगेन जगलिंग मल्टीपल रोल्स टुगेदर, यू नॉट जस्ट अ पेरेंट एनी मोर, आप और 10 चीजें मैनेज कर रहे हैं, आप बच्चे का स्कूल का काम देख रहे हैं या कॉलेज का काम, आप उनके होमवर्क्स करा रहे हैं, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज, लंच बॉक्स पैक करना, इंश्योर करना उनके पास सारी चीजें हैं जो उनको चाहिए, इफ यू लिविंग विद योर फैमिली, फैमिली मेंबर्स का देखना, यू बिकम सॉर्ट ऑफ लाइक अ मैनेजर ऑफ द एंटायर फैमिली। आपसे इतनी सारी डिमांड्स होने लगती हैं पेरेंट्स से, दैट समटाइम्स वो इतना डिफिकल्ट हो जाता है ना मैनेज करना, इट एड्स ऑन टू सो मच स्ट्रेस, और दूसरे लोग ये इजीली नहीं देख पाते हैं, उनको लगता है ये तो डेली का काम है, दिस इज नॉट समथिंग मेजर। But as a parent, you're not only a parent, you're a person of your own. You're a partner or a spouse. You're a daughter or a son. You're also like a son-in-law or a daughter-in-law. And you're also siblings. If you're working, then you're also an employee. If you are, a homemaker, then you're a homemaker. You have to manage the house. Everything, वो इतना सारा काम होता है, and most of the times mothers या fathers जो भी अपने बच्चों को पढ़ाने की responsibility ले रहे हैं, वो teachers भी बन जाते हैं उनके, एंड एट द सेम टाइम आपको अपने बच्चों का फ्रेंड्स बन के भी रहना होता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स इतना सब हो जाता है कि पेरेंट्स की प्लेट पे इतना सारा कुछ होता है कि वो मैनेज करना इतना डिफिकल्ट हो जाता है, इट एड्स टू सो मच स्ट्रेस, कि आगे जाके उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है इन चीजों की वजह से। अगेन जैसा पवन मैम ने मेंशन किया कि हम अपने आप से हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, एंड ऑल्सो ना सोसाइटी भी आज पेरेंट्स बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाती है। what happens over here is कि ना पेरेंट्स को लगने लगता है कि आई वांट टू डू माय बेस्ट फॉर माय चाइल्ड, नो मैटर वो उतना कर सकते हैं नहीं कर सकते, बिकॉज एवरी पेरेंट वांट्स कि हमारा बच्चा दुनिया का सबसे खुश बच्चा रहे, राइट? बट कई बार वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, सबके फाइनेंशियल रिसोर्सेज अलग होते हैं, सबके पास उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो पेरेंट्स कई बार अपने आप को दूसरे पेरेंट्स से कंपेयर करने लगते हैं, वो तो ये करा रही है या वो तो ये करा रहे हैं, दे आर सो बिजी, वो तो फुल टाइम काम भी कर रहे हैं, व्हाई एम आई नॉट एबल टू डू दिस? बट देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो आपको कंसिडर करनी चाहिए, मे बी दे हैव हाउस हेल्प एंड यू डोंट, मे बी उनके घर पे जॉइंट फैमिली है, बाकी सब पेरेंटिंग में बहुत हेल्प कर रहे हैं, you don't have that privilege, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, तो we should always never compare ourselves with other parents and always understand कि हमारी सिचुएशन और उनकी सिचुएशन बहुत अलग है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि सोसाइटी भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखती है पेरेंट्स से, एज पेरेंट्स तो ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों का ध्यान रखना, स्कूल में एक एक्सपेक्टेशंस होती है पेरेंट्स से, आपका बच्चे का लंच बॉक्स हेल्दी होना चाहिए, हमेशा टाइम पे बच्चा स्कूल आना चाहिए, शूज पॉलिश होने चाहिए, बच्चा वेल ग्रूम्ड होना चाहिए, नेल्स ट्रिम्ड होने चाहिए, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अनसेट तरीके से पेरेंट्स पे आ जाती है। बच्चा एक्सपेक्ट करता है मेरे लिए मेरे मम्मी पापा हमेशा अवेलेबल रहे, फैमिली एक्सपेक्ट करती है कि बच्चे का सारा काम मम्मी पापा देखें, बट वो उतना अच्छे से पॉसिबल नहीं हो पाता। आई गिव अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, इफ यू लिव इन अ कम्युनिटी, कई बार होता है कई फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, लाइक लोहड़ी, रक्षाबंधन तो नहीं बट लोहड़ी, इंडिपेंडेंस डे, दी फेस्टिवल्स कलेक्टिवली, जन्माष्टमी सेलिब्रेट होते हैं, ऐसी जगहों पे कई बार बच्चे परफॉर्मेंसेस भी देते हैं, डांस परफॉर्मेंस एंड ऑल, या कभी पोएम सुना देंगे या गाना गा देंगे। उससे क्या होता है, अगर एक कम्युनिटी में 5 बच्चे रह रहे हैं, उसमें से 4 बच्चे परफॉर्म एंड आपके बच्चे ने परफॉर्म नहीं किया है, सोसाइटी में आपको ये भी लगेगा, सब लोग बोलेंगे कि यार सिर्फ इसके बच्चे ने परफॉर्म नहीं किया, आपको भी लगेगा यार बाकी सब पेरेंट्स ने इतना टाइम इन्वेस्ट करवा दिया, आई एम दी ओनली वन जो नहीं कर पाई, व्हाट इज रॉन्ग विद मी, मे बी मेरे में कुछ कमी रह गई है, तो चाइल्ड माइट ऑल्सो फील यार सबके पेरेंट्स ने तो कराया, मेरे पेरेंट्स ने नहीं कराया। सो दीज थिंग्स, ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो पेरेंटिंग स्ट्रेस पे एड ऑन कर देती है। Now I would like to know anybody of you would like to share कि आपने कभी ऐसा फील किया है कोई चीज, या you just want to add anything more to this, anything related to this?
Anybody would like to add anything? ये तो एक तरह से रूटीन लाइफ में अगर एक की जाए फील, ये रूटीन लाइफ में होती है। Hmm. पेरेंट स्ट्रेस के 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं। जैसे एक हम कहते हैं कि बच्चों की वजह से हमें स्ट्रेस आता है, या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्लस जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और हाँ जैसे जी। आपने बोला कि जैसे पेरेंट्स स्टार्टिंग में जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों की प्रॉब्लम्स, बच्चों के काम उनमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उसका स्ट्रेस। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब खुद उठाना शुरू कर देते हैं, तो पेरेंट्स के पास कई बार टाइम होता है, फिर काम नहीं होता कि जो Hmm. काम वो बिल्कुल खुद करते थे, हर काम बच्चे का खुद करना, उसका ध्यान रखना, छोटे-छोटे काम करने। जब बच्चे थोड़ा स्टेप बैक वर्ड नहीं, तो थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं या बाहर चले, तो वो एम्प्टीनेस जो आती है ना पेरेंट्स के अंदर, वो भी एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस होता है कि अब हमारे Exactly. बच्चे हमारे पास नहीं है, या हमारे पास अब कुछ काम ही नहीं है करने के लिए। फ्री टाइम है और वो फ्री टाइम काटना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वेरी वेल सेड मैम। एक पेरेंट्स को एक खालीपन फील होने लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा पोर्शन मुझसे चला गया। एंड अगेन वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ऐड ऑन करता है। अब हमने स्ट्रेस की इतनी बात कर ली कि इससे स्ट्रेस होता है, उससे स्ट्रेस होता है। व्हाट इज द पॉइंट? हम इससे ये समझना चाह रहे हैं, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस होना बहुत नेचुरल है। लाइफ में कोई भी चीज हो रही है, इफ इट्स नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, स्ट्रेस इज वेरी नेचुरल। बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर वो स्ट्रेस मैनेज नहीं हो पा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। तो उससे एक सिचुएशन आ रही है बर्नआउट। नाउ बर्नआउट इज समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, जिससे आगे जाके हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर तो आपने स्ट्रेस मैनेज कर लिया, वेल एंड गुड। बट अगर वो एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया तो आप बर्नआउट की सिचुएशन पे आ जाएंगे। नाउ व्हाट इज बर्नआउट ओवर? बर्नआउट का सिंपल सा मतलब है एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसी स्टेट जिसमें आप ना सिर्फ फिजिकली टायर्ड हैं, बट मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली तीनों तरीके से आप इतना थके हुए हैं, इतना टायर्ड एंड इतने एग्जॉस्टेड है कि नाउ आप कुछ और नहीं कर पा रहे हैं, किसी और चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, किसी और चीज पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वो आपके ऊपर इतना प्रेशर आ गया है कि अब ऐसा लग रहा है बस आई गिव अप, आई कांट डू एनीथिंग एल्स। तो बर्नआउट की सिचुएशन इज एक्सट्रीमली हार्मफुल, नॉट जस्ट फॉर यू एज अ पर्सन एंड नॉट जस्ट एज अ पेरेंट, बट एज अ पर्सन एज वेल। एंड ऑल्सो आपके बच्चों को उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ता है, एंड इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स योर रिलेशनशिप्स, your relationships with your partner, your relationship with your child, and your performance, आपकी work performance, आपकी घर पे काम में, ये हर चीज को इतना अफेक्ट करता है कि उसके बाद आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। नॉट जस्ट दिस, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बर्नआउट के इस तरह से होते हैं, द पर्सन कंप्लीटली डिटैचेस फ्रॉम, मतलब अपने आप से भी वो अलग अलग रहने लगते हैं और कई बार इस तरह से टायर्ड हो जाता है कि बस आई गिव अप लाइफ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए अब। वो सिचुएशन आना इतना हार्मफुल है कि वी नीड टू मैनेज द स्ट्रेस अर्ली स्टेजेस पे, ताकि वो बर्नआउट वाली सिचुएशन पे आए ही ना। राइट? ओके, सो नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इनविजिबल मेंटल लोड, जो आई थिंक ऑल ऑफ यू वुड अग्री विथ मी, ऑल ऑफ द पेरेंट्स ओवर हियर वुड अग्री कि स्ट्रेस जो होता है ना एज पेरेंट्स, बाकियों को कभी दिखता नहीं है। उनको लगता है, जैसे गुरमीत मैम ने पॉइंट आउट किया, तो डेली का काम बन जाता है ये सारी चीजें। बाकी लोगों को लगेगा ये तो डेली का काम है, इसमें कौन सा कुछ स्पेशल कर रहे हैं। बट वो डेली का काम करने के पीछे सो मच, इतनी सारी मेहनत लग रही है, इतना सारा एफर्ट लग रहा है, इतना सारा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, घर पे सब लोगों को मिला के। अगर आपके दो बच्चे हैं तो हो सकता है एक बच्चा स्कूल में हो, एक कॉलेज में हो, दोनों के लंच बॉक्सेस अलग जाएंगे, दोनों का घर से निकलने का टाइम अलग अलग है, दोनों का घर आने का टाइम अलग अलग है। देन उसके बाद दोनों को पढ़ाई दोनों की बहुत अलग अलग है, किसी को किसी तरीके की हेल्प चाहिए। जो स्कूल में जो बच्चा, उसको हो सकता है अपने होमवर्क्स में हेल्प चाहिए, असाइनमेंट्स में चाहिए। जो बच्चा पढ़ा है उसके प्रोजेक्ट्स थोड़े अलग टाइप के हैं कि आप करना भी चाहो तो आप कई बार नहीं कर पाते हो। उसके अलावा बच्चों का खाना देखना, ना सिर्फ बच्चों का, पूरी फैमिली का खाना देखना, होमवर्क्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, डॉक्टर विजिट्स ऑर्गेनाइज करना, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, कोई फेस्टिवल्स आ जाते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, तो बाकी सबको सिर्फ उतना ही काम दिखता है जो आप काम कर रहे हो। बट वो काम करने के पीछे आपके दिमाग में कितना प्रेशर है, कितना एफर्ट लगता है, सब कुछ होता है, वो और ज्यादा आप पे मेंटल लोड ऐड करता है जो दूसरों को नहीं दिखता है।
as parents you're always the family manager, you know, if you're living in a joint family, आप मैनेज कर रहे हो अपने इन-लॉज को या आपके पेरेंट्स को, आप मैनेज कर रहे हो, आप अपने बच्चों को भी मैनेज कर रहे हो, यू आर सॉर्ट ऑफ अ ब्रिज इन बिटवीन, जो सब कुछ देख रहे हैं, पूरे घर को देख रहे हैं। एंड मोर ऑफन देन नॉट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर्स पे ज्यादा आ जाती है, because we live in a society जहाँ पे you know even if the mother is also working full time, what happens mostly is कि you know एक अनसची रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि घर उनको संभालना है, राइट? बच्चे की पढ़ाई उनको देखनी है, बच्चे का स्कूल का काम हो रहा है नहीं हो रहा है, मदर्स को देखना है। आई थिंक ऑल ऑफ द मदर्स हियर वुड अग्री विथ मी कि इवन इफ यू नो पेरेंट्स दोनों होते हैं, मदर एंड फादर, मोस्टली मदर्स पेरेंटिंग का काम ज्यादा करती हैं एज कम्पेयर टू फादर्स। एंड उसकी वजह से उनको थोड़ा सा और लगता है कि यू नो दिस इज मोर टायरिंग फॉर मी, एंड ऑफन टाइम्स वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, इरिटेट हो जाती है अपने आप से और अपने बच्चों दोनों से, विच इज नॉट हेल्थी अगेन। फॉर दिस मैं एक बहुत ही अनकन्वेंशनल सा एक डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल दूंगी। जैसे मैंने अभी कहा कि मदर्स पे पेरेंटिंग ज्यादा आ जाती है, बट यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी किस तरह से आई हैड अ क्लाइंट एंड उन पे किस तरह से ही वाज द फादर एंड उन पे किस तरह से पेरेंटिंग का इतना प्रेशर था, ही वाज एक्चुअली यू नो द मेजर पेरेंट इन द रिलेशनशिप। So this person, he is like in his early 30s, mid 30s, and doing well, like career wise, very nice, married to a good girl, like you know, love marriage. But before the marriage, लड़की ने clear कर दिया था बच्चों का काम आप करोगे, I am not going to manage that, ठीक है? And he agrees कि ठीक है कोई बात नहीं, I don't mind. Both of like mother father both working from home, they eventually have kids. They have a daughter around 8 9 years old, 7 8 years old, and a son who is like 4 5 years old, ठीक है? Now since the mother was very clear कि मैं तो नहीं करूंगी, मैं खाना वाना बना दूंगी, but nothing more than that. So what happened is father ने सारा काम ले लिया कि ठीक है, I will work, ऑफिस का काम करूंगा मैं, बच्चों को खाना पिलाना सुलाना। It would come to a situation जहाँ वो ऑफिस की मीटिंग्स छोड़ के बच्चों को दोपहर को सुलाते थे या खाना खिलाते थे, and the mother would not participate at all. When the father confronted the mother regarding this, she was like, मैं तो नहीं कर रही, मैंने तो पहले ही बोला था मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप करो। नाउ वो करते रहे आफ्टर अ फ्यू इयर्स इट केम टू अ पॉइंट जहाँ पे फादर का इतना ज्यादा वो थक गए थे, ही वाज अ वेरी जॉली पर्सन, काफी इंजॉय करते थे, फन लविंग, वेरी केयरिंग। ही केम टू अ पॉइंट जहाँ पे वो अपने बच्चों के साथ 5 मिनट बैठ के खुश नहीं थे, चिड़चिड़े हो गए थे, उनका उनकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप खराब हो गया था, उनके पेरेंट्स बोल रहे थे कि ही इज नॉट द सेम पर्सन एनी मोर। व्हाई वाज दिस हैपनिंग? दिस वाज हैपनिंग बिकॉज उन्होंने पेरेंटिंग का सारा लोड अपने ऊपर ले रखा था। He was actually, even though mother and father both were present, he was actually a single father in that situation. Why? Because the mother was not interested in taking care of the kids. So this is an example जहाँ पे जब mental load एक parent पे ज्यादा पड़ जाता है तो वो किस situation में आ जाता है, उनकी क्या हालत हो जाती है। And then obviously आपको help की जरूरत पड़ती है, professional help, and there's nothing wrong with that. It's perfectly safe, it's perfectly healthy, and in fact it's good to take professional help. बट वाई हम उसको इस सिचुएशन पे ही क्यों डाले कि वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं घर पे? तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम वो जो इनविजिबल मेंटल लोड है ना उससे पहले ही डील कर ले ताकि वो सिचुएशन में ही ना जाए। वुड एनीबडी हैव एनी थॉट्स रिगार्डिंग दिस? कुछ भी आप शेयर करना चाहेंगे? एनी थॉट्स? मैंने एक एग्जांपल शेयर किया, रियल लाइफ केस है ये, a client that I had, and these are very common examples. ऐसी चीजें बहुत commonly देखी जाती है. So anybody would like to share anything? आपने जो एग्जांपल दी है वो बिल्कुल ठीक है कि जब हम एक पेरेंट के ऊपर, चाहे वो मदर है या फादर है, उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो मेंटली इमोशनली टायर्ड होगा ही। और ये तो आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। कई बार एज ए फादर जो बाहर काम करके आते हैं, कई बार वो भी हम टायर्ड होते हैं, लेकिन जब बैठ के 5 मिनट 10 मिनट जब बातचीत होती है, घर के बारे में बात होती है, एक दूसरे के साथ जब हम जो अपने पॉइंट्स हैं वो शेयर करते हैं, तो उससे थोड़ा सा जो स्ट्रेस होता है ना, वो थोड़ा सा जो एज ए अगर मदर है, होम मेकर है, वो रिलैक्स फील करेगी कि बात बैठकर हुई, उसने घर के बारे में या बच्चों के बारे में पूछा, या बच्चों के साथ थोड़ा 10 मिनट बैठ के टाइम स्पेंड किया, कि बच्चों की स्टडी के बारे में पूछा, कोई स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं पूछा। इससे ही जो घर में जो मेंटली स्ट्रेस चल रहा होता है या मदर के दिमाग में जो होता है, उससे थोड़ा रिलीफ होता है। कि सिर्फ बात है कि दोनों पार्टनर्स की अंडरस्टैंडिंग की,
कि अगर वो एक दूसरे के साथ थोड़ी मिलकर चलें कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, ये हमारी, हम मिलके करेंगे, तो इससे थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस कम हो जाएगा। ट्रू, वेरी ट्रू। पेरेंटिंग एक दो लोगों की जॉब है। ऑब्वियसली मदर एंड फादर आर बोथ प्रेजेंट, इट्स इम्पोर्टेंट कि दोनों पेरेंट्स इक्वली पार्टिसिपेट करें ताकि किसी भी एक पे प्रेशर ना पड़े एंड दोनों पेरेंट्स पेरेंटिंग को एंजॉय कर सके रादर देन उसको एक जॉब या एक काम की तरह देखना, उसे एंजॉय कर सके अच्छे से। और कोई कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा इसमें? एनीथिंग, एनी थॉट्स, एनीथिंग दैट यू माइट हैव रिलेटेड टू, एनीथिंग लाइक दैट? ओके, सो आई वुड लाइक टू मूव ऑन टू अ केस स्टडी, जहाँ पे फिर आपको एक बहुत सिंपल तरीके से एक स्टोरी है एक मदर की, ऋतु। एंड देन आई वुड लाइक टू नो आप लोगों के फीडबैक कि किसी ने कुछ ऐसा रिलेट किया ऋतु से, और एनीथिंग कि आपने अपने में ऐसा कुछ नोटिस किया है। सो ऋतु इज अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, शी वर्क्स फुल टाइम। एवरी मॉर्निंग शी वेक्स अप अर्ली, अपने बच्चों का टिफिन पैक करती है, इंश्योर करती है दोनों बच्चे स्कूल के लिए अच्छे से रेडी हो जाए। एंड देन सडनली शी रिमेम्बर्स कि आज एक बच्चे का साइंस प्रोजेक्ट भी तैयार करना है बिकॉज वो जल्दी सबमिट करना है स्कूल में, और एक दूसरा जो बच्चा है उसको एक बर्थडे पार्टी में जाना है, तो आज याद से घर आते हुए बर्थडे पार्टी के लिए गिफ्ट भी लेके आना है दैट दैट चाइल्ड विल गिव टू द बर्थडे बॉय। वो काम पे चली जाती है, उसके बाद अपना रेडी होके वहां पे कॉन्स्टेंटली उनका फोन बजी जा रहा है, स्कूल ग्रुप से मैसेजेस आ रहे हैं, वर्क के मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ मैसेज आई जा रहे हैं उनको उस ग्रुप पे। सो शी इज कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम हर वर्क इज वेल। हाउएवर एनी डे पूरा दिन जाता है, शी कम्स बैक होम, उनका फोन वो रखती है कि ठीक है, नाउ शी थिंक्स अपना काम खत्म करती है अपना ऑफिस का एंड एवरीथिंग, नाउ शी थिंक्स आई हैव टाइम। अब अपने बच्चों का होमवर्क देखती है ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, साथ साथ वो डिनर भी बनाती है, डिनर की तैयारी करती है सारी, सब आते हैं खाना खाते हैं, सोचती है कल रात को क्या करना है, खाना खा रही है, अब सोचिए अच्छा कल सुबह क्या बनाऊंगी, कल रात को क्या बनाऊंगी, हाँ साइंस प्रोजेक्ट अब कल करूंगी, आज तो मैं कर नहीं पाई। ऐसी सब चीजें उनके दिमाग में चल रही है व्हाइल शी इज ईटिंग डिनर। ठीक है, रात हो गई है, शी इज कम्प्लीटली टायर्ड, वो बेड पे लेट जाती है सोने के लिए। बट व्हाट हैपेंस नाउ इज उनको नींद नहीं आ रही है, उनके दिमाग में डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स चल रहे हैं। शी इज फीलिंग गिल्टी कि वो सारा काम ठीक से नहीं कर पाए, उनको अपने बच्चे का साइंस प्रोजेक्ट आज शुरू करना था बट शी वाज नॉट एबल टू डू दैट। अपने बच्चों के साथ टाइम तो वो स्पेंड ही नहीं कर पाए, होमवर्क कराया, काम किया, छुट्टी। वो एक अच्छे से खेलना या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना वो नहीं कर पाई। शी ऑल्सो नोटिस कि थोड़े दिनों से ना वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, बच्चों पे छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर रही है, उनसे चिढ़ रही है, और बच्चे इसलिए उनसे नाराज भी हैं, ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। शी ऑल्सो रियलाइज कि वो अपने हस्बैंड से भी एक इमोशनल डिस्टेंट फील कर रही है, कि वो अपने हस्बैंड से अपनी बात शेयर नहीं कर पा रही है, कनेक्ट नहीं कर पा रही है अच्छे से, और इस सब की वजह से शी इज अनेबल टू स्लीप रात को। ऐसे काफी टाइम निकलता है, 1-2 घंटे होते हैं, देन अगेन वो सो नहीं पाई, उनको नींद अच्छी नहीं आई, अगले दिन वो सुबह उठती है, देन दिस अगेन द सेम रूटीन, पूरा दिन उसी तरह से फॉलो होने लगता है। नाउ इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि जो वो एक्सपीरियंस कर रही है, जो थॉट्स आ रहे हैं जो उनको, दिस इज इनविजिबल मेंटल लोड, क्योंकि बाकी सबने तो वो काम देख लिया जो वो कर रही थी, बट नोबडी नोटिस्ड कि उस काम करने के पीछे उनकी कितनी प्लानिंग, प्रेपरेशन, कितनी ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, सब कुछ जा रहा था, उनकी कितनी मेहनत लग रही थी। एंड हियर द मेंटल लोड इज नॉट जस्ट फिजिकली, इट्स लाइक कांस्टेंट प्लानिंग, रिमेम्बरिंग, वरी की वजह से वो इमोशनली एंड मेंटली इतना थक चुकी है दैट इट हैज नाउ लीड टू द स्टेज ऑफ बर्नआउट, जहाँ पे अब वो और कुछ करने का मन नहीं कर रहा, कांस्टेंट गिल्ट फीलिंग आ रही है, एंड वो ना अपने आप में अच्छा फील नहीं कर पा रही है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ ऋतु। Now, I would like to know आप में से कोई कभी भी at any point of time since you've become a parent or anything, आपको कभी ऐसी फीलिंग आई है, like कोई भी पॉइंट पे you've related with ऋतु किसी भी चीज पे, या हो सकता है कि आप काम स्टार्ट नहीं करवा पाए जो आपने सोचा था आज ये काम करना है या खत्म करना है, कोई था कि कोई बच्चे को स्कूल में कुछ लेके जाना था या कहीं जाना था, एंड यू जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट बिकॉज यू वर सो बिजी विद एवरीथिंग एल्स, या कभी आप खाना टाइम पे प्रिपेयर नहीं कर पाए, या कभी ऐसा लगा आज का दिन कहाँ, आप में से किसी ने कभी रिलेट किया है इसमें से किसी भी चीज से? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, अपने थॉट्स दे सकते हैं रिगार्डिंग ऋतु स्टोरी और एनीथिंग, या फिर आप चैट बॉक्स में सिंपली यस या नो भी बता सकते हैं, या फिर आप हैंड्स भी रेज कर सकते हैं अगर आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो। इट वुड ऑल्सो हेल्प अदर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि हाँ दे आर नॉट अलोन इन फीलिंग दिस वे। एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? Maitri ma'am, would you like to add anything?
Pavan ma'am, would you like to add anything to this? Apna thoughts, anything? Deepti ma'am, how about you? Anything like yes, no, I haven't felt this way, I have, लगता है हाँ ये सब होता है और पेरेंट्स के साथ. Okay, so Pavan ma'am writes, yes, she has felt the same way. Thank you so much, ma'am, for sharing. I know it's not very easy to share कि आप ऐसा कई बार feel करते हैं ऐसी feelings, but thank you so much for coming forward and sharing this. Maitri ma'am writes, I have observed ladies reporting this kind of burnout more often than fathers. Very rightly said, ma'am. जैसे मैंने पहले भी डिस्कस की थी ये चीज कि women जो mothers हैं वो ये ज्यादा experience करती हैं because unsaid तरीके से उन पे ज्यादा प्रेशर आता है टू फील दिस वे टू वर्क. घर का सारा काम आपने जैसे इस स्टोरी में भी नोट करेंगे ऋतु की स्टोरी में कि इवन दो शी इज आल्सो वर्किंग फुल टाइम, द हस्बैंड इज नॉट टेकिंग एज मच पार्ट इन घर का काम करने में एज ऋतु इज डूइंग, बिकॉज वो ज्यादा घर का टिफिन वगैरह लंच बॉक्स खाने का देखना होमवर्क कराना, शी इज द वन मैनेजिंग एवरीथिंग. I think this is one of the major reasons mothers are more likely to experience burnout as compared to fathers. And in fact, ज़्यादातर studies यही show करती हैं that mothers जल्दी burnout and emotional exhaustion feel करती हैं as compared to fathers, because fathers parenting में उतना ज़्यादा नहीं हो पाते हैं involved. Maitri ma'am also writes, mothers complain that their partners are busy on their phones after coming from home. Very true, ma'am. आप बहुत अच्छा point बता रही हैं क्योंकि often ये देखा जाता है because still in our society the husband is working and the wife may or may not work, right? तो husbands जब काम करके आते हैं, if the wife is a homemaker, they are like हाँ मैं थका हूँ अब मैं अपना फोन चलाऊंगा, I need rest, पूरा दिन तुम तो घर पे ही थी. And even if the mothers are working, then also उनको उतना value या regard नहीं दी जाती है ज्यादातर घरों में अभी भी, because कहीं ना कहीं वो है एक स्टीरियोटाइप है हमारी सोसाइटी में वेयर इट्स जेंडर बायस्ड कि जहाँ पे मदर्स पे सारा प्रेशर आ जाता है, वो ऑफिस का काम भी करके आएंगे या तो घर आकर उनको फोन चलाने का आप सब अग्री करोगे. आप एक्चुअली होम मेकर्स हो या चाहे आप वर्किंग हो, यू कम बैक होम, यू आर फिनिश्ड विद योर, आप अगर 5 मिनट फोन चलाने बैठ जाओगे ना, वो एक कॉन्स्टेंटली मजाक में भी कई बार ये बातें होती है, देखो मम्मी तो फोन चला रही है, मम्मी तो देखो बैठी हुई है, मम्मी तो देखो थकी ही रहती है पूरा दिन. But people don't understand this is happening because मम्मी पूरा दिन काम कर रही थी. Even though आपको नहीं दिख रहा था, मम्मी का दिमाग सोते हुए भी चल रहा था. मम्मी का दिमाग में था कि मेरे बच्चे अब घर आएंगे, मैंने तोरी बनाई है, मेरे बच्चे तोरी नहीं खाएंगे. I would have to make something else for that, for them. तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, मदर्स को काफी ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं. थैंक यू ऑल फॉर शेयरिंग अपने एक्सपीरियंस एंड व्हाट यू हैव सीन अदर पीपल एंड योर ओन एक्सपीरियंस एज वेल. ओके, so with this, I would like to move forward to understanding the signs and symptoms of burnout. जैसे मैंने मेंशन किया कि स्ट्रेस जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है टू अ पॉइंट जहाँ पे आप कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हैं ऑल थ्री डोमेन्स, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल, तब बर्नआउट हो जाता है. बट ऑब्वियसली हम हमेशा मेंटल फिजिकल सोशल ऐसे सोच नहीं सकते हाँ यहाँ बर्नआउट है, हाँ ये हुआ. कुछ बहुत कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो आप अपने आप में और दूसरों में नोटिस कर सकते हैं, जिसकी वजह से यू वुड गेट टू नो कि हाँ maybe I am or the other person is moving towards a stage of burnout, तो अब हमें डील करने की जरूरत है इस सिचुएशन से. What are the signs and symptoms? आप जल्दी इरिटेट हो जाएंगे, गुस्सा जल्दी करेंगे, आप देखेंगे you'll be very short tempered all of a sudden, you'll get annoyed easily, you'll get irritated easily. It can also happen कि आपको छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाएगा. It's a very common sign of emotional exhaustion, emotional tiredness and fatigue. कॉन्स्टेंटली आपको लगेगा कि अपने घर वालों के साथ बैठने का मन नहीं करेगा, यू वुड वांट टू स्पेंड टाइम अपार्ट, इमोशनली डिस्टेंट हो जाएंगे, ना कि सिर्फ अपने बच्चों से, अपने पार्टनर से और अपने बाकी फैमिली मेंबर्स से भी. आपको नींद आने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी कि रात रात को नींद नहीं आएगी, यू विल कीप ऑन ओवर थिंकिंग, आप अपने आप को डाउट करने लगेंगे, यू विल थिंक मैंने कुछ नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. कॉन्स्टेंट फटीग रहेगा. व्हाट इज फटीग? फटीग इज बेसिकली बॉडी में टायर्डनेस रहना, पूरा टाइम से थकावट सी होते रहना, नो रीजन, आपने कोई काम भी नहीं किया होगा इतना, आप सुबह से रेस्ट कर रहे होगे, बट एक कांस्टेंट वो रहेगी बॉडी में कि थकावट है, मेरे को नहीं हो रहा है, मन नहीं कर रहा है उठने का, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, जैसे हमने ऋतु की स्टोरी में देखा, वो सब का सारा काम कर रही थी अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए सब कुछ मैनेज कर रही थी,
बट शी हैड दिस फीलिंग ऑफ गिल्ट कि मे बी आई एम नॉट डूइंग इनफ, मैं ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। जब वो गिल्ट फीलिंग इतनी ज्यादा कभी कभी आना इज ओके, बिकॉज कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हो जाती है जिसमें हम कोई काम नहीं कर पाते या लगता है यार ये करना था हुआ नहीं, वंस इन अ वाइल एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट अगर ये फीलिंग कॉन्स्टेंटली रहने लगे कि मैं कुछ ठीक से नहीं कर रही हूँ एज अ पेरेंट, आई एम लैकिंग, मैं ये नहीं कर पा रही, वो नहीं कर पा रही, जब ये फीलिंग इतनी ज्यादा आ जाए, इट्स अ साइन टू अंडरस्टैंड कि नाउ इट्स नो लॉन्गर जस्ट अ फीलिंग, वो आप इमोशनली एंड मेंटली कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज लॉस ऑफ जॉय इन पेरेंटिंग। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, पेरेंटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग जर्नीज ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। आप लोग अग्री करेंगे, once you become a parent, you become completely obsessed with your children, कि अपने बच्चों के अलावा दुनिया में कोई और कुछ दिखता ही नहीं है आपके लिए, आपके बच्चे सबसे पहले, राइट? एंड आपको अच्छा भी लगता है अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करना, खुशियां मनाना, उनके साथ हर चीज में खड़े रहना। बट जब वो फीलिंग आनी बंद हो जाए और ऑल ऑफ अ सडन यू फील आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम विद देम, मेरे को अच्छा नहीं लगता, आप उनके साथ रह के चिढ़ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि पेरेंटिंग अब आपको एक एंजॉयमेंट से ज्यादा आपको टास्क और जॉब लगने लगी है कि ओ गॉड, सुबह उठ के फिर इनका ये करो वो करो। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, इट्स अ साइन दैट इट्स नो लॉन्गर जस्ट थोड़ी बहुत परेशानियां, थोड़ा बहुत स्ट्रेस, इट्स बर्नआउट, राइट? नाउ आई वुड वांट टू नो, आप में से कभी किसी ने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया, लाइक इरिटेबिलिटी इज अ वेरी कॉमन साइन, या बच्चों से चिढ़ जाना, या ट्रबल स्लीपिंग, एनीबॉडी ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस किया? यू कैन सिंपली राइट yes, no, unmute yourself, anything you're comfortable with. Vinmeet ma'am, would you like to add anything? अ, जैसे अपनी केस स्टडी बताई ऋतु की, मेरे ख्याल से वो शायद हर इंडियन विमेन की स्टोरी है। हाँ जी। रूटीन वर्क वही होता है उनका, और जो उन्हें फीडबैक मिलना चाहिए वो मिलता है कि नहीं मिलता, वो कुछ नहीं पता होता। कि उन्होंने ऐसे जैसे एक मशीन काम करती है, पता है कि सुबह उठना है, ये सारे काम करने हैं, सारा दिन ये चलना है। तो जो जैसे ये साइंस दिखाए हैं, ये मोस्टली आ जाते हैं दिमाग में कि जैसे इतना कुछ करके भी जब कई बार बच्चे आगे से कई बार उनकी अपनी लाइफ हो जाती है, तो इरिटेट होके बोलते हैं। तो जब जैसे एज ए पेरेंट बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बैठो, तो शायद बच्चों का उस टाइम इतना मूड नहीं होता, तो जब वो इरिटेट होकर बोलते हैं, उस टाइम पर भी एज ए मदर लगता है कि शायद अब इन्हें हमारी इतनी जरूरत नहीं है। या कई बार हम काम, जैसे ये फटीग का था, कि काम करके कई बार इतना थक जाते हैं कि कई बार हमें मन होता है कि 5 मिनट के लिए कोई कुछ ना कहे, हम बस चुप करके हमने बैठना है, और ये हमारा टाइम है। लेकिन वो 5 मिनट बैठना भी कई बार अच्छा आप फ्री हो गए, आप आप तो आप फ्री हो, आप बैठे हुए हो, अब ये कर लो आप। हम्म। तो वो टाइम जो होता है ना, वो कई बार वो एज ए मदर समझा नहीं पाते कि ये हम मेंटली इतना ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं कि अब ये 5 मिनट में चुप करके बैठना है। तो वो समझाना भी कई बार दूसरों को बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा दिमाग पजल हो जाता है। वेरी राइट, आपने बहुत अच्छे से नाम एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। कि ये एक्चुअली एक्चुअली हर इंडियन मदर की, हर इंडियन वुमेन की कहानी है कि आपको घर भी मैनेज करना है, आपको काम भी मैनेज करना है, बच्चे हैं तो बच्चे भी मैनेज करने हैं, फैमिली है तो फैमिली भी मैनेज करनी है, एंड स्टिल देयर इज नो अप्रिसिएशन। एंड मोर देन अप्रिसिएशन, आई थिंक एज women वी वांट एक्नॉलेजमेंट, कि अप्रिशिएट, हमारी तारीफ मत करो कि हम इतना सब कर रहे हैं, बट एटलीस्ट एक्नॉलेज करो, मान लो कि यार काम तो कर रहे हैं और बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा मैनेज कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत लग रही है। एंड ये सब साइंस इतने कॉमनली देखे जाते हैं इंडियन विमेन, इंडियन मदर्स में स्पेशली, कि हाफ ऑफ द टाइम वो डिसरिगार्ड कर देते हैं कि ये सब तो कॉमन है, सबको होता है, इसमें क्या बड़ी बात है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग ओवर हियर टू अंडरस्टैंड इज इट एक्चुअली इज अ बिग थिंग, ये एक्चुअली बड़ी बातें हैं। तो किसी दूसरों को नहीं दिखेंगी, आपको भी लगेगा छोटी चीज है, छोड़ो ना, इग्नोर करते रहोगे। बट कई बार वो इग्नोर करते 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 इतना बढ़ जाती है कि आपको बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी वजह से। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग। एनीबडी एल्स, आप लोग कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? जैसे गुरमीत मैम ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया इस सिचुएशन में, एनीबडी एल्स? मैत्री मैम, पवन मैम, दीप्ति मैम, कुछ भी यू वांट टू ऐड? एनीथिंग आपको इससे रिलेटेड लग रहा है, एनीथिंग दैट यू मे हैव एक्सपीरियंस्ड?
आपने देखा कि अदर्स आर एक्सपीरियंसिंग एनी ऑफ दीज साइंस, आपने किसी और में नोटिस किया है? या यू फील लाइक गुरमीत मैम सेड कि ये सब तो डेली का हो जाता है कि एवरीबॉडी इज एक्सपीरियंसिंग, बट कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता इन चीजों को. Okay, so let's move on to the next thing, which is understanding the impacts of work. हमने ये तो जान लिया कि बर्नआउट हो कैसे हो रहा है, कैसे आइडेंटिफाई करें और क्या क्या है, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, नॉट जस्ट ऑन पेरेंट्स बट ओवरऑल. सो जिस पर्सन के साथ बर्नआउट एक्सपीरियंस जो कर रहा है, ऑब्वियसली दे आर नॉट फीलिंग गुड, राइट? उनको कांस्टेंट स्ट्रेस है, बिकॉज स्ट्रेस से ही अल्टीमेटली बर्नआउट की सिचुएशन आ रही है. उनकी बॉडी में दे कॉन्स्टेंटली फील टायर्ड एंड इरिटेटेड, फैटीग्ड, अग्रेशन आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन, एंड बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस में पेरेंट्स कैन आल्सो बिकम वायलेंट टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन. वायलेंट इन द सेंस कि मदर्स, आपने देखा होगा जो यंग बच्चे होते हैं ना, एंड मदर इज द ओनली वन मैनेजिंग देम. कई बार आप ऐसा देखेंगे कि मदर इतना इरिटेट हो जाती है कि वो बच्चा आ नहीं रहा है, वो बहुत देर से पढ़ा रही है, शी विल स्लैप द चाइल्ड, एंड देन सब मदर को डांटने आ जाएंगे कि आपने थप्पड़ मार दिया, आपने गुस्सा कर दिया, नहीं करना चाहिए था, आप गलत हो. बट नोबडी वुड एक्चुअली अंडरस्टैंड कि मदर कितनी देर से मेहनत कर रही थी वो सारे काम में, एंड शी इज सो टायर्ड विद एवरीथिंग दैट वो उस सिचुएशन में आ गई वेयर शी एक्चुअली स्लैप्ड हर ओन चाइल्ड, राइट? ये चीजें बहुत देखी जाती हैं. देन इसके अलावा मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, दिस आर वेरी कॉमन अमंग वुमेन, स्पेशली वुमेन मदर्स, बट फादर्स एज वेल हो सकता है, जिसमें वो कॉन्स्टेंटली उनको एक टायर्डनेस है. और जैसे आपने टर्म सुना होगा पोस्टपार्टम डिप्रेशन. इसका मतलब होता है कि जब आफ्टर गिविंग बर्थ, बच्चा जब आपने बर्थ कर दिया है, उसके बाद मदर्स में आप बहुत कॉमनली देखेंगे उनको बहुत ही खराब फीलिंग, पूरा टाइम लो लगे रहना, अपने आप से थके रहना, अपनी बॉडी से, अपने आसपास सबसे परेशान होना. ये सब इसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन इसे कहते हैं, बिकॉज सडनली आपकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो गई है. यू आर नो लॉन्गर द सेम पर्सन. आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जी रहे हो. तो वो एक एक्चुअली ऐसी ही सिचुएशन है जहाँ पे मदर्स आर एक्सपीरियंसिंग बर्नआउट पूरी सिचुएशन से, एंड जहाँ उनकी अपनी हेल्थ भी खराब हो रही है, फिजिकली एज वेल. फिजिकली उनको डाइजेशन प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन देखी जाती है. कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया आर एक्चुअली two of the most common physical signs of anxiety and stress. अगर आपको बिना बात के everything is going fine, you're very stressed, very anxious about anything, आपको stomach upset हो जाएगा, आपको indigestion हो जाएगा. ये आप लोगों ने बहुत commonly notice किया होगा. दिल खराब हो रहा है, जी खराब हो रहा है. These things are very common जो देखी जाती है. पेरेंट्स में जब burnout की situation आ जाएगी ना, तो इमोशनल एंड मेंटल सारा कंबाइन होकर फिजिकल हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं. फादर्स के साथ भी सेम चीज होती है. पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक्चुअली फादर्स को भी अफेक्ट करने लगता है. आजकल ऐसी काफी स्टडीज हो रही है मदर्स एंड फादर्स न्यूली जो बने होते हैं कि उन पे किस तरह से अफेक्ट होता है बच्चे का उनकी लाइफ में आने का, एंड एवरीथिंग. एंड सडनली जब ऑल ऑफ अ सडन बिना रीजन के वो बर्नआउट की स्टेज पे आ जाते हैं, उनको नींद पूरी नहीं मिलती है छोटे बच्चों के साथ, ऑल ऑफ दीज उनकी हेल्थ पे क्या इश्यूज होते हैं. और ये तो हो गया पेरेंट्स का. नेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड बच्चों पे क्या असर हो रहा है बर्नआउट का. पेरेंट्स का बर्नआउट है, बच्चों पे क्या असर हो रहा है. बिकॉज पेरेंट्स ऐसे टाइम पे इमोशनली डिस्टेंट होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था, तो उससे बच्चों को लगता है माय पेरेंट्स डोंट लाइक मी, दे डोंट वांट टू स्पेंड टाइम विद मी, मे बी देयर समथिंग रॉन्ग विद मी. स्पेशली जब बच्चों के यंगर ईयर्स में ये हो रहा होता है, टीनेज तक जब ज्यादा ऐसा हो रहा होता है, बच्चे ये सब चीजों को अपने रीजन समझ लेते हैं कि मेरे में कोई कमी होगी कि मेरे पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं. जब ऐसे होता है बच्चों की सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, सोशल स्किल्स उनकी कम हो जाती हैं, उनको ऐसा लगता है मे बी आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव. शायद मैं हूं ही नहीं ऐसा, कि मेरे अपने पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करे तो और कोई क्यों करेगा. उनको अटैचमेंट इश्यूज होने लगते हैं, जो आगे जाके उनकी लाइफ में जब वो रोमांटिक पार्टनर्स आते हैं, उनकी शादी होती है, वो उसमें भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं. और कल को जब उनके बच्चे होते हैं, वो अपने बच्चों के साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर नहीं कर पाते हैं इसकी वजह से. तो बच्चों पे बहुत सिवियर इम्पैक्ट हो जाता है पेरेंटल बर्नआउट का. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज इट. बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस में बच्चे आपको रिएक्ट करते हुए दिख सकते हैं कि वो चिल्ला देंगे पेरेंट्स पे. कई बार बच्चे वायलेंट हो जाते हैं, सामान तोड़ देंगे. और बहुत ही रेयर केसेस में, बहुत एक्सट्रीम केसेस में ये भी देखा गया पेरेंट्स के साथ वायलेंट हो जाएंगे, उनको धक्का दे देंगे गुस्से में कि आप तो हमेशा ही ऐसे करते हो, आपका तो कभी मूड ही नहीं होता, आप तो हमेशा ही थके रहते हो. ऐसी सिचुएशंस. तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि बच्चों पे क्या असर हो रहा है पेरेंट्स की सिचुएशन का. एंड देन अगेन ओवरऑल एज अ फैमिली,
आपकी डिसएग्रीमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल जाएंगी, आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे बहुत सिवियर। आपका जो रिलेशनशिप बॉन्ड होता है बच्चों और मदर्स का, फादर्स का, अदरवाइज की फैमिली में जो एक बॉन्ड होता है वो आपको खराब होता हुआ दिखेगा। एंड यू वुड नोटिस कि इसकी वजह से एक जो कनेक्शन होता है फैमिली में वो ढंग से नहीं रहेगा। एंड योर फैमिली विल बी स्कैटर्ड, वो इकट्ठे एक साथ नहीं रहेंगे, वो सब अलग अलग हो जाते हैं सबकी वजह से। तो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट टू एड्रेस बर्नआउट एट एन अर्ली स्टेज, ताकि इनमें से कोई भी सिवियर सिचुएशन आए ही ना हमारे पास। ओके, तो आई वुड लाइक टू नेक्स्ट टॉक अबाउट कोपिंग स्ट्रेटजीज जो हमें ये स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करेंगी। आप में से कोई अपना इनपुट देना चाहेगा? इन आपको क्या लगता है क्या स्ट्रेटजीज वर्क करेंगी, क्या स्ट्रेटजीज हेल्पफुल हो सकती हैं? एनीथिंग बिफोर आई गिव माय पॉइंट ऑफ व्यू, आप में से कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहेगा? एनीथिंग, समथिंग दैट मे बी आपने यूज किया है? Maitri ma'am says taking time for oneself. Very well said, ma'am. And this is actually practicing self-care. One point that I was going to say, आपने बहुत अच्छे से बता दिया। अपने लिए time लेना, it's very important. It's important for everyone, not just for parents, but even if you're not a parent, it's important for you to take some time for yourself. Maitri ma'am also writes shared responsibility and positive parenting techniques. Absolutely, Maitri ma'am, you're very right. हमें we should seek support, we should try to delegate responsibilities to other people ताकि काम मिलजुल के हो पाए, और सारा काम हम शेयर करके कर सके। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग मैम। सो मैत्री मैम ने एक्चुअली अच्छे पॉइंट्स बता ही दिया, सो आई वुड जस्ट लाइक टू ब्रीफली गो ओवर द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स। फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई ट्रिगर्स। ट्रिगर्स क्या होते हैं? ट्रिगर मतलब आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसका जड़ निकालना, उसका कॉज पता करना, राइट? अगर आप स्ट्रेस्ड हो, आप परेशान हो, आप एंग्शियस हो, किस चीज को लेके हो, बस एक बार ये आइडेंटिफाई कर लिया आपने। जैसे मान लो मेरे बच्चे के एग्जाम्स आ रहे हैं और पिछली बार उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, दैट इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस। अब मेरे को कॉज तो पता चल गया स्ट्रेस का, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? अब मेरे को उस चीज को एड्रेस करना है। पिछली बार मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, इस बार मुझे मार्क्स अच्छे लाने हैं, तो इस बार मैं ज्यादा मेहनत करूंगी पढ़ाने में। सिंपल। समटाइम्स इट्स नॉट दैट सिंपल। आपने पढ़ाया था, आपने पिछली बार भी बहुत मेहनत की थी, आपने उससे पिछली बार भी बहुत मेहनत की थी, मार्क्स नहीं आ रहा है, देन आपको स्टेप आ जाता है सीकिंग सपोर्ट। जैसे मैत्री मैम ने भी पॉइंट आउट किया, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सपोर्ट सीख कीजिए, अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं, देखो मैंने पढ़ाया था, नहीं हो रहा, आप पढ़ा के देख लो। इफ यू हैव लाइक एन ओल्डर चाइल्ड जो आपके छोटे बच्चे को पढ़ा सके, आप उनको कहिए प्लीज आप पढ़ा दो अपने छोटे भाई बहन को। आप स्कूल टीचर से बात कर सकते हैं कि देखो इसका ये सब्जेक्ट वीक है, मुझसे नहीं हो रहा है, मे बी मैम आप थोड़ा और पढ़ाने पे देखिए कि इसको कहाँ कमी आ रही है, आप एक बार पूछ लीजिए क्लास में इससे। अगर वहां पे भी आपको नहीं हो रहा है, आप ट्यूशन टीचर्स या कोचिंग सेंटर्स जाके पता कर सकते हैं, आप वहां पे अपने बच्चे को फोकस्ड अटेंशन मिल जाएगी। अलग अलग सोर्सेज आप देख सकते हैं जहाँ पे आप पता चलेगा कि आपके बच्चे की प्रॉब्लम, आपको सारा कुछ अपने सर पे नहीं लेना, आपको और सपोर्ट सिस्टम्स ढूंढने हैं जो आपके साथ आपका काम आसान कर सके। And the next one is practicing self-care without guilt. मैत्री मैम ने भी ये पॉइंट आउट किया था, टेकिंग टाइम फॉर वन सेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर टेक्निक। सेल्फ केयर सबके लिए एक जैसी नहीं होती है, सबके लिए अलग होती है। सिंपल सा मतलब है सेल्फ केयर का, कुछ ऐसा जो करके आपको अच्छा लगे। फॉर मी इट इज कि जब मैं बहुत एग्जॉस्टेड होती हूँ ना, फॉर मी इट इज जस्ट आंखें बंद करना और अपनी पसंद के बस गाने सुनना शांति से, या फिर एक लॉन्ग वॉक पे चले जाना बिना किसी से बात करे, तो शांति से वॉक करो। किसी के लिए कुछ और हो सकता है, लाइक मैत्री मैम के लिए कुड बी टेकिंग टाइम, मतलब सेल्फ केयर हो सकती है। किसी के लिए हो सकता है कि आई जस्ट वांट टू गेट अ हेड मसाज। किसी के लिए हो सकता है आई जस्ट वांट अ हॉट कप ऑफ टी। किसी के लिए हो सकता है दे जस्ट वांट टू मे बी हैव लाइक अगर बारिश हो रही है बारिश में चले जाना, दे वांट टू रीड अ बुक। फॉर माय मदर इट्स रीडिंग अ बुक। व्हेन शी इज वेरी टायर्ड, वेरी एग्जॉस्टेड, वो अपना रूम बंद करेंगे, शी विल टेल अस कोई मेरे रूम में नहीं आएगा, शी विल जस्ट रीड अ बुक। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हेल्प। तो जैसे आप लोग कुछ भी ऐसा जो आपको अच्छा फील करा, इट कुड बी गोइंग टू अ स्पा, इट कुड बी गोइंग फॉर शॉपिंग, इट कुड बी अपने बच्चों के साथ घूमने जाना, कुछ अच्छा खाना, एनीथिंग लाइक दैट जो आपको पसंद हो, जिससे आपके मन को तसल्ली मिले, आपको अच्छा फील हो। बट यू शुड नेवर फील गिल्टी अबाउट इट कि यार मेरे को तो हर हफ्ते ऐसा हो जाता है। डोंट फील लाइक दैट। इनफैक्ट आप ये सोचिए कि हर हफ्ते आपको अच्छा मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार आज मैंने अपना ध्यान रखा, कल आई एम बैक टू वर्क, आई एम बैक विद ऑल द पावर। एंड द लास्ट वन इज माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन।
इसका सिंपल सिंपल सा मतलब है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, एनीथिंग जो आपको रिलैक्स करता है। अगर आपको माइंडफुलनेस इज सिंपल, की माइंडफुलनेस का सिंपल सा इतना मतलब है कि प्रेजेंट में जिए, फ्यूचर या पास्ट के बारे में मत सोचिए, बस प्रेजेंट में जिए। अगर आप खाना खा रहे हैं, जैसे ऋतु की स्टोरी में हमने देखा था ना, वो खाना भी खा रही थी, वो कॉन्स्टेंटली कल के बारे में सोच रही थी, वो नहीं करना है हमें। हमें माइंडफुली अपने बारे में सोचना है, अभी के बारे में सोचना है। मैं खाना खा रही हूँ, फोकस ऑन द खाना इज वेरी नाइस, इट स्मेल्स वेरी गुड, टेस्ट बहुत अच्छा है, इट्स वेरी ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, ब्यूटिफुल कलर्स, ऐसी चीजों पे फोकस कीजिए। योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प करती है रिलैक्सेशन के लिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में अनुलोम विलोम वो माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन दोनों को कंबाइन कर देता है, आपकी बॉडी को प्रेजेंट मोमेंट में भी लेके आता है, आपसे सारे फालतू के थॉट्स भी इधर उधर चले जाते हैं और आप रिलैक्स भी हो जाते हैं। So these are some things that can actually help to deal with stress. Just one small thing I would like आप में से बस आप लोग अपनी सेल्फ केयर टेक्निक्स बता सके, जैसे मैथ्री मैम ने अपना बताया टेकिंग टाइम फॉर वन सेल्फ। मैम इफ यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग एल्स, कुछ और जो आपको लगता है दैट इज योर सेल्फ केयर टेक्निक, गुरमीत मैम आप कुछ ऐड करना चाहें, दीप्ति मैम एनीथिंग, पवन मैम एनीथिंग जो आपकी अपनी सेल्फ केयर टेक्निक है, समथिंग दैट मेक्स यू फील बेटर। मेरे लिए तो है कि जैसे जब काम करके थोड़ा थक जाते हैं तो अपना टाइम निकालने, तो मेरे को होता है कि 10 मिनट 15 मिनट अपना आराम से चुप करके बैठना है, कोई मेरे को बुलाए नहीं, या अगर मैंने कोई हाँ जी, कॉमेडी शो लगा लिया तो मैं वो आराम से देखूं, मेरे को कोई बोले ना बीच में। वेरी राइट, एकदम अच्छा तरीका है आपका। जैसे मैम ने बोला टेकिंग टाइम फॉर वन सेल्फ, मैथ्री मैम सेज कुकिंग डाइवर्ट्स माय माइंड। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। कुकिंग एंड बेकिंग कुछ लोगों को बहुत हेल्प करती है, you know, when they're very stressed या exhausted by anything, या they just want to make themselves happy, they cook, they bake. Pavan ma'am says sitting in silence. So see, we have very all of you have common interests ki, you know, kya kya cheez, and actually these things are very common. Thank you ma'am for sharing all of you. Aditi ma'am, would you like to add anything to this, like what helps you, aapko kya help karta hai self care, anything that is self care for you? But thank you all of you for sharing. एंड एक्चुअली इससे हमें पता चलता है कि क्या क्या अलग अलग तरीके हैं सेल्फ केयर प्रैक्टिस करने की। देयर इज नो वन वे जिससे हम अपना ध्यान रख सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ का। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर शेयरिंग। ओके, सो वैसे तो हमने मेंटल लोड का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया एंड मैथ्री मैम ने भी पॉइंट आउट कर दिया, यू नो वी शुड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट यू नो ब्रीफली गोइंग ओवर दीज पॉइंट्स, सबसे इम्पोर्टेंटली हमें अपने पार्टनर से और फैमिली मेंबर से ओपनली कम्युनिकेट करना चाहिए जब हमारे पास इतना मेंटल लोड हो रहा है, हम वी आर सो एक्सॉस्टेड सो टायर्ड, इतना मेंटल प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। We should always share with not only our partner but our family members as well that this is what I'm going through. Because आप बोलोगे नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा, nobody would actually understand आप किस चीज से गुजर रहे हो, right? कोई भी अंतर्यामी नहीं है। If you share, they will understand, they will listen, they will understand. Then delegating tasks, सिंपल है, शेयर कर दो, सबको काम दे दो। अगर बच्चे का होमवर्क है बड़े बच्चे को दे दो, यू नो यू मैनेज हिज मैथ्स का होमवर्क, आई एम मैनेजिंग इंग्लिश का होमवर्क, द फादर इज मैनेजिंग साइंस का होमवर्क। प्रोजेक्ट्स है, आर्ट रिलेटेड है, the older child can do that. Or you know if you feel, if you're living in a joint family और भी फैमिली में बच्चे हैं और लोग करवा सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स कैन हेल्प प्रोजेक्ट बनाने में। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आप उनको टास्क दे दीजिए कि यू नो जस्ट आपको अगर सिर्फ मॉनिटर करना है कि आपका बच्चा होमवर्क कर रहा है या नहीं, ऑब्वियसली आपका टाइम भी उसमें इन्वेस्ट हो रहा है और आप थक भी रहे हो, फालतू में आपको टाइम उधर इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, कॉन्स्टेंटली दिमाग में चलता है इसकी जगह ये कर रही होती, ये कर रही होती। आप उस टाइम पे ग्रैंड पेरेंट्स को बोल दो कि आप देख लो प्लीज, आप बस देखो वो होमवर्क करता रहा, इधर उधर शैतानी में ना भाग जाए, या बच्चे के साथ खेलने के लिए टाइम स्पेंड करना है या कुछ भी करना है, ग्रैंड पेरेंट्स बहुत हेल्प कर सकते हैं उसमें। आप ऐसे हेल्प ले सकते हैं अलग अलग लोगों से ताकि आपका काम आपके ऊपर सारा ना पड़े, सबके ऊपर मिक्स होके काम आ जाए, राइट? फिर उसके बाद यूजिंग शेयर्ड प्लानर्स एंड कैलेंडर्स बहुत हेल्प करता है। घर पे एक कॉमन जगह पे एक बड़ा सा कैलेंडर रख दो, वहां पे लिख दो आज ये काम करना है, आज के दिन ये काम खत्म करना है। सो आज के दिन बच्चे को वैक्सीनेशन लगवाने लेके जाना है। इट्स एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट्स नॉट जस्ट द मदर और फादर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ इट्स अ जॉइंट फैमिली, एनीबडी हु इज गोइंग देयर देख सकता है अच्छा आज ये काम कराना है। इफ यू आर फ्री, बोलो कि आप में से कोई फ्री है तो करवा देना। इफ एनीबडी इज फ्री, वो देखेंगे ओके बच्चे को ले जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए, वापस आए कैलेंडर से वो चीज काट, everybody in the house can participate,
डिजिटल कैलेंडर्स यूज कर सकते हैं इफ यू कंफर्टेबल, नहीं तो ऐसे फिजिकल कैलेंडर्स भी बहुत हेल्प करते हैं। आप सिंपली उसमें काट दो, हाँ ये टास्क हो गया है, नहीं हुआ है तो सबको पता चलेगा हाँ ये नहीं हुआ है, ये सबको करना है, राइट। एंड लर्निंग टू से नो विदाउट गिल्ट, जो मर्जी हो जाए, अगर आप इतना थके हुए हैं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, you're tired, you're not feeling well, you're not feeling up to it, अगर आपको कोई काम आपका बच्चा बोल रहा है करने को कि मम्मी मेरे साथ बैडमिंटन खेलो, एंड यू आर नॉट फीलिंग अप टू इट, आप फिजिकली थके हुए हो, आप मेंटली थके, पूरा दिन का काम करके आप थक गए हो, रात को शाम को 7 बज गए, डिनर वगैरह भी करना है, एंड डोंट फील अप फॉर इट, लर्न टू से नो, कह दो कि बेटा आई कांट डू इट, आई एम सो टायर्ड, आई एम सो सॉरी, आई विल प्ले नेक्स्ट टाइम जब टाइम होगा, बट आई कांट डू इट राइट नाउ। बिकॉज व्हाट विल हैपन इज, आपने अगर अभी कर दिया, आपने कहा कि अच्छा यार कर लेती हूँ, आप जाओगे आपकी खुद की तबीयत खराब होगी, एंड देन यू वुड फील यार मैं थक गई, बॉडी पेन हो सकता है, फिजिक आप और ज्यादा टायर्ड हो जाएंगे, एंड हो सकता है आप डिनर ही ना बना पाए, देन इट वाज ऑफ नो यूज, राइट। तो आप आराम से बच्चों को बोलिए। बेटर येट, अगर टास्क डेलीकेट हो सकता है, यू नो आप और लोगों को बता सकते हैं कि अदर बच्चे हैं घर में, कि आप उनके साथ खेलो, पापा साथ खेलो, पापा भी फ्री हैं, तो थिंग्स लाइक दैट आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कीजिए। और अगर नहीं हो रही है तो भी इट शुड, यू नो आपके बच्चों को पता होना चाहिए कि हमेशा मम्मी पापा हर चीज के लिए हाँ नहीं बोलेंगे, उनको नो सुनने की आदत भी होनी चाहिए, बिकॉज इफ नॉट देन बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, उनको है फिर मेरी हर चीज अभी हो, एंड देन आप पे ही प्रेशर बढ़ता है अल्टीमेटली। तो इट्स बेटर कि आप पहले ही वो बाउंड्री सेट कर ली अपने लिए कि जो काम नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, मुंह बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, ओके। एंड देन द फाइनल वन इज बिल्डिंग रेजिलियंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिलियंस का क्या, रेजिलियंस का सिर्फ इतना सा मतलब है कि एक इंसान की इतनी एबिलिटी कि कोई भी प्रॉब्लम आई है लाइफ में, कोई भी सिचुएशन आई है, वो उससे डील कर सके और उससे आगे बढ़ सके, राइट। इस पे ही लटके ना रह जाए, ड्वेल ना करते रहे, उससे आगे बढ़े। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज परफेक्शनिज्म से दूर रहना है सब पेरेंट्स को। इट शुड नेवर बी कि मैं परफेक्ट पेरेंट हूँ, मैं सब करूंगी या करूंगा, मेरे से कुछ गलत नहीं हो सकता है। जस्ट रिमेंबर यू कैन नॉट बी परफेक्ट, यू आर ओनली ह्यूमन। कई बार होगा कि आप कुछ चीजें मिस करेंगे, आप किसी चीज में कमी भी छोड़ सकते हैं, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, आप अपना बेस्ट दीजिए, फिर चाहे वो परफेक्ट हो या ना हो, अपना बेस्ट दीजिए अपने बच्चे को। तो परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं, गुड इनफ के पीछे भागे कि मेरा जो है अच्छा, मैं जितना कर सकती हूँ। छोटी छोटी विन, स्मॉल विन सेलिब्रेट कीजिए अपने बच्चों के साथ। यू नो इफ द बच्चा इज वेरी स्मॉल एंड यू आर हेल्पिंग देम लर्न अ पोएम, तो आप उनको जब वो पोएम पूरी कर ली, नॉट जस्ट सेलिब्रेट कि बच्चे ने याद की, बट ऑल्सो सेलिब्रेट द फैक्ट कि आपने एफर्ट डाला था याद कराने में, आपकी मेहनत सफल हुई है। सो जस्ट सेलिब्रेट छोटी छोटी चीजें एज अ फैमिली, तो आपका फैमिली कनेक्शन भी अच्छा करता है, एंड आपको यू नो रिलेशनशिप्स भी अच्छे करते हैं, मोटिवेशन भी मिलती है। बिल्डिंग सपोर्ट नेटवर्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोर्ट नेटवर्क्स का मतलब है कि यू नो एनी टाइम यू फीलिंग लो इन योर जर्नी, एनी टाइम एनी डे, आप ऐसे लोग होने चाहिए आपके पास, आप जिनके पास हेल्प के लिए जा सकते, जिनके पास आप एडवाइस के लिए जा सके, सजेशंस के लिए जा सके। सपोर्ट नेटवर्क्स कौन लोग हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, अदर मदर्स हो सकती हैं जो आपके बच्चे के स्कूल के पेरेंट्स हैं वो हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हु आर ऑलरेडी पेरेंट्स वो हो सकते हैं, एंड देयर आर अदर वेज टू गेट सपोर्ट ग्रुप्स एज वेल। वन सच वे लाइक पेरेंट एवा, जैसे हमें कम्युनिटी ऑफर कर रही है जहाँ पे यू नो एक सपोर्ट नेटवर्क पेरेंट्स का बन रहा है, जहाँ पे देर कमिंग टुगेदर, देर मीटिंग वन अनदर ग्रुप पे, यू नो ऐसी कॉन्वर्सेशन हो रही है जहाँ पे वन पेरेंट इज गोइंग थ्रू समथिंग लाइक मेरा बच्चा फोन नहीं छोड़ रहा है पूरा दिन, व्हाट कैन आई डू। वहां पे रिसोर्स पर्सन अवेलेबल है पेरेंट एवा के व्हाट्सएप ग्रुप पे। देर आर अदर पेरेंट्स ऑल्सो दैट कैन यू नो कम एंड वो बता सकते हैं, ओ आई डिड दिस वर्क फॉर माई चाइल्ड, मैंने अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम ऐसे किया, 1 घंटा देखोगे, अगर एक हफ्ते तक सिर्फ 1 घंटे पे लिमिट करोगे, आफ्टर 1 वीक यू गेट अ चॉकलेट, बिकॉज आपने पूरे हफ्ते अच्छे से फॉलो की इंस्ट्रक्शंस। मे बी आफ्टर 2 वीक्स या 1 मंथ यू गेट योर फेवरेट टॉय, यू गेट अ न्यू स्कूल बैग, थिंग्स लाइक दैट। ऐसे सजेशंस मिल सकते हैं आपको सपोर्ट ग्रुप्स पे, सपोर्ट नेटवर्क्स पे। आप दूसरे पेरेंट्स से, टीचर्स से आप गाइडेंस ले सकती है, तो ऐसी चीजें बहुत जरूरी है टू यू नो हेल्प योर सेल्फ बिकम अ बेटर पेरेंट, एंड ऑल्सो अपनी इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग के लिए भी। And finally, seeking professional help. As I mentioned before as well, professional help, you know, seek करने में कुछ गलत नहीं है. It's absolutely right. आप कभी ऐसी situation में that you're not able to deal with it yourself, it's always advisable कि आप professional help के counselors and you know psychologists से, जो आके आपको better advice to solutions provide कर सकते हैं, आपको help कर सकते हैं to you know go through that situation.
ऐसा नहीं होगा कि वो आपको बताएंगे ये करो तो आपको वो करना है, लेकिन ऑब्वियसली गाइड यू, दे कैन गिव यू सजेशंस, आप अपने पॉइंट्स दे सकते हैं, दे कैन हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड द सिचुएशन, राइट? नॉट जस्ट फॉर यू, फॉर योर चिल्ड्रन एज वेल। प्रोफेशनल हेल्प वहाँ पे भी बहुत काम आएगी, जहाँ पे आपके बच्चे किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और आपको नहीं शेयर कर पा रहे, रादर देन फीलिंग बैड अबाउट योर सेल्फ एज अ पेरेंट, आप समझे कि मे बी द चाइल्ड नीड्स प्रोफेशनल हेल्प, आप एक प्रोफेशनल को लाएंगे, हो सकता है बच्चा उधर ओपन अप कर जाए, आपका रिलेशनशिप फिर भी स्ट्रांग ही रहेगा उस सब की वजह से, राइट? नाउ जैसे हमने भी बात कर दी कि डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टास्क की, मैं जानना चाहूंगी आप में से, ऑब्वियसली हमने इतना सब शेयर किया, एनीवन आप में से कोई भी शेयर करना चाहेगा कोई भी ऐसा एक टास्क, ऐसी एक्टिविटी जो आपके दिमाग में आती है कि अभी तक मैं कर रही हूँ, बट मे बी अगले हफ्ते, टुडे सैटरडे, मे बी मंडे ऑनवर्ड्स आई विल टेल समबडी एल्स टू डू दिस टास्क फॉर मी एटलीस्ट फॉर अ वीक। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, इट कैन बी बच्चों का होमवर्क कराना, इट कैन बी कुकिंग डिनर, इट कैन बी बेडिंग करना रूम की, लाइक आप अपने बच्चों को कुछ देना चाहे, अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली में किसी और को, एनीथिंग दैट यू फील कि आप डेलीगेट कर देंगे किसी और को। एनीबडी? गुरमीत मैम, वुड यू लाइक टू शेयर ऐसी कोई एक्टिविटी? ये जैसे बच्चे जो टीन एज में है उन्हें हाँ जी। जैसे मदर के बाद इसमें इतने काम होते हैं, अपने बच्चे को कोई काम, दो काम जो है ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने ये काम नहीं करना। अ, जैसे इसकी बेडिंग है या उसका कोई भी जो उसका पर्सनल काम है, वो एज ए मदर वो छोड़ देते हैं कि हमारी मम्मी कर लेगी, तो वो काम उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अगर हम क्लियरली बता देंगे कि ये आपकी है, तो एक तो स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा, काम का लोड कम होगा, तो ऑब्वियसली मेंटली लोड भी कम हो जाएगा। और ये राइट। साथ में अपने पार्टनर से भी ऐसे ही कहना कि जो छोटे छोटे काम है वो आप कर लो, तो बाकी जो काम है घर का वो मैं खुद ही संभाल रही हूँ। इससे भी मेंटली लोड थोड़ा कम हो जाता वेरी ट्रू, वेरी राइटली सेड मैम। I'll give an example. So, when my sister and I, हम लोग teenage में आ गए थे, what my mother used to do was, very suddenly she was like, आज से मैं तुम लोगों के कपड़े आयरन नहीं कर रही हूँ, खुद प्रेस करो सब लोग अपने अपने कपड़े, बच्चे। So all of a sudden, we were like, okay, क्यों? मम्मी was like, मैं नहीं करूँगी, I am tired, मेरे पास बहुत काम है, अपने अपने करो, एटलीस्ट यूनिफॉर्म तो खुद ही करो। और जब उनके पास टाइम हो गया, एक दो बार हमने नहीं किया, एंड देन वी रियलाइज ओके मम्मी तो सीरियस है, मम्मी तो सच में नहीं कर रही, अब तो खुद ही करने पड़ेंगे। देन माय सिस्टर एंड आई, हमने अपने यूनिफॉर्म प्रेस करनी खुद से शुरू कर दी, स्कूल यूनिफॉर्म। दैट डे एंड टुडे वो हमारे कपड़े आयरन नहीं करते हैं। वो कहते क्रश पहन जाओ, इट्स ओके, बट आई वोंट आयरन योर क्लोथ्स बिकॉज दिस इज समथिंग यू आर ओल्ड इनफ, मैच्योर इनफ टू डू इट योरसेल्फ। हम लोगों ने खुद करने शुरू कर दिए कपड़े। एंड अब से मुझे लगता है कि अब ऐसा है कि जरूरत ही नहीं पड़ती है उनको हमें बोलने की कि कर लेना, अब हम अपने भी करते हैं, कई बार उनके भी कर देते हैं, तो उनके ऊपर भी प्रेशर कम हो गया है। तो आई थिंक एक बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे आप अपना काम कर सकते हैं और बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने की आदत भी डल जाती है। पवन मैम, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? मैत्री मैम, हाउ अबाउट यू? एनीथिंग, कोई भी ऐसी छोटी सी एक्टिविटी जैसे गुरमीत मैम ने पॉइंट आउट की, आप लोग कुछ पॉइंट करना चाहेंगे? कोई भी छोटी सी एक्टिविटी दैट यू फील आप लोग अपने बच्चों को डेलीगेट कर देंगे या किसी और को घर में? You can also type in the chat box if you're not comfortable speaking. Okay, so let's move on to the key takeaways that we get from today's webinar. If you can still type in the chat box, that will be amazing. और लोगों को भी ideas मिलेंगे, क्या क्या कर सकते हैं अपने बच्चों को, tasks कैसे कैसे delegate कर सकते हैं. So key takeaways from this webinar we can understand जो key points हैं, that stress is normal. Stressful feel हो रहा है आपको, उसमें कोई गलत बात नहीं है. However, जब वो बढ़ जाए तो इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप बर्नआउट सिचुएशन में हैं एंड अब आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने की जरूरत है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, अदरवाइज आपके लिए बहुत हार्मफुल होने वाला है. मेंटल लोड इज समथिंग दैट्स वेरी रियल, इट्स नॉट समथिंग जो आप इमेजिन कर रहे हैं. नो मैटर आपको कोई कितना भी बोले तुम ज्यादा सोच रहे हो, इतना कुछ काम नहीं है, ये है वो है,
इट एक्चुअली इज काम, आपको प्रेशराइज्ड फील हो रहा है तो हो रहा है. डोंट लेट एनीबडी मेक यू थिंक अदरवाइज. शेयर इट विद अदर्स, डोंट कैरी इट अलोन. आप शेयर करेंगे तो सबको पता चलेगा कि यू आर एक्सपीरियंसिंग these things, otherwise nobody will get to know. And self care is a very important part of parenting. Understand what is self care for you and do that. Some things might work, some things might not. Experiment करिए आपके लिए क्या काम करता है. इनफैक्ट आप अपने बच्चों को भी डाल सकते हैं उसमें. लाइक लेट्स से किसी को हेड मसाज करना अच्छा लगता है, आज के और बच्चे बेटा मेरा हेड मसाज कर दो. आपको अपना नेल पेंट लगवाना है, बच्चों मेरा नेल पेंट लगाओ अपनी. यू वांट अ फुट मसाज, बेटा चलो मेरा फुट मसाज करो. मैं आप अपने हेयर कट कराने जा रहे हो, अपने बच्चों को ले जाओ, बेटा आपको हेयर कट कराना है. इफ यू वांट टू ईट समथिंग नाइस, बाहर जा रहे हो, अपने बच्चों को ले जाओ. उनके लिए एक्टिविटी भी हो जाएगी एंड आपके लिए सेल्फ केयर भी हो जाएगी. एंड यस, कई बार होता है बच्चे नहीं चाहिए, अकेले करना है. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. नो नीड टू फील एनी गिल्ट और एनीथिंग. And it's important to understand happy parents mean emotionally secure children. जब पेरेंट्स हैप्पी होंगे, वो इमोशनली अपने बच्चों के साथ अवेलेबल होंगे, उनके साथ अच्छे से रहेंगे एंड बच्चे भी फिर अच्छा फील करेंगे एंड दे विल हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स, राइट? Maitri ma'am writes, I feel it's easier to delegate work to children rather than your partners, given that extended family members. Partners, parents also live with us. Then they think we are shrugging their responsibility. मैत्री मैम, यू आर वेरी राइट व्हेन यू से दिस कि बच्चों को काम देना आसान है एज कम्पेयर टू योर पार्टनर एंड स्पेशली हस्बैंड्स. बिकॉज देन इन लॉज का कई बार ऐसा होता है हमारे लड़के से काम करा रहे हो. बिकॉज एज आई सेड वी स्टिल लिव इन दैट सोसाइटी जहाँ लड़के राजा बेटा होते हैं. वी डोंट वांट आवर लड़के टू वर्क, राइट? वो घर का काम क्यों करेंगे? बट आई थिंक दैट इज वेयर द bond and relationship of couple comes in. As a couple you discuss, ये काम मैं करूंगी, ये काम आप करोगे, and it can start from very basic things, right? And I think then it becomes responsibility of the husband as well to take a stand. कि अगर उनकी मम्मी, आपके हस्बैंड की मम्मी बोल रही है या उनके पापा बोल रहे हैं बेटा तू क्यों कर रहा है ये काम, वो करेगी ना, मम्मी करेगी, ये काम लड़के थोड़ी करते हैं. टेक अ स्टैंड. टेल हिम टू टेक अ स्टैंड फॉर यू. टेल हिम कि आई वांट यू टू टेक अ स्टैंड फॉर मी. कि जब मुझे कोई बोल रहा है या कोई कह रहा है, आप बोलो ना एक बार कि यार आप भी तो पेरेंट हो ना बच्चे के. आप क्यों बच्चों को कपड़े नहीं पहना सकते हो सुबह स्कूल भेजने के लिए? या आप क्यों, अगर मैंने खाना बना दिया है आप एटलीस्ट पैक तो कर सकते हो या उनकी पानी की बोतल भर सकते हो. ऐसी चीजें आप उनको बोले कि आपके लिए स्टैंड लीजिए. आई नो इट्स नॉट ऑलवेज इजी फॉर एवरीवन. समटाइम्स द हस्बैंड्स आर नॉट वेरी अंडरस्टैंडिंग. बट बहुत छोटी छोटी चीजों से ट्राई टू हेल्प देम अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट. अगर वो कोई काम कर रहे हैं ना आपके साथ, an important thing कि वो आगे करते रहे is to appreciate. उन्होंने आज आपकी हेल्प करा दी बच्चों को रेडी करने में स्कूल में. टेल देम थैंक यू सो मच यार, आपने आज हेल्प करा दी, काम हो गया. आई वाज सो टायर्ड, मेरे से तो हो ही नहीं रहा था. अगर उन्होंने आपके साथ बर्तन कराने में हेल्प करा दी या खाना बनाने में हेल्प करा दी, टेल देम थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट यू डिड दिस फॉर मी. आई नो आप भी थके हुए थे, यू मस्ट आल्सो बी टायर्ड, बट दिस एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट, वरना आज मेरा काम ही नहीं हो पाता. थैंक यू, आपने काम करा दिया, मैं डिनर शांति से बैठ के कर पाया. आई वाज़न्ट वरीड अबाउट दिस और दैट. ऐसे अप्रिशिएटिंग देम, एक्नॉलेजिंग उनकी हेल्प आल्सो हेल्प्स. एंड घर में ऑब्वियसली एक्सटेंडेड फैमिली जब होती है, उनके पेरेंट्स होते हैं, वो हमेशा नहीं समझते हैं, वो गुस्सा करेंगे कई बार. वो बोलेंगे कि नहीं तुम तो बिगड़ गए हो. बहुत प्यार से, नेवर बी रूड विद देम बिकॉज ऑब्वियसली दे विल नॉट अंडरस्टैंड. दे कम फ्रॉम अ डिफरेंट थिंग. उनके टाइम पे मम्मियाँ लोग, मतलब मदर्स, जो मतलब वाइफ्स और हस्बैंड का रिलेशनशिप वाज नॉट समथिंग दैट इट इज टुडे. उनके टाइम पे घूंघट लेके घूमना था. उनके टाइम पे पति के पैर छुओ, पति देवता समान है. टाइम आर चेंजिंग नाउ, इट्स नॉट द सेम एनीमोर, राइट? तो हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड छोटी छोटी चीजों से कि हाँ जी मम्मी जी, उन्होंने हेल्प करा दी थी, मैंने रिक्वेस्ट की थी उनसे, वो कह रहे थे कि इतना डिफिकल्ट हो रहा है तो थोड़ा सा इसलिए करा दिया. हाँ जी मैं ध्यान रखूंगी. आपको बोल दो हाँ मैं ध्यान रखूंगी, आगे से कुछ करूंगी. गो टू योर हस्बैंड, टेल हिम थैंक यू सो मच, आपने बहुत हेल्प करा दी मेरी, आई अप्रिशिएट इट, प्लीज थोड़ा सा आगे से ऐसे ऐसे कराओ. उनको भी अप्रिशिएट किए, उनको भी नाराज मत करो. बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड लिविंग इन जॉइंट फैमिलीज कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली जब लड़ाई हो जाए. डोंट आर्ग्यू, डोंट फाइट. आराम आराम से उनको भी कहो हाँ जी मम्मी, हाँ जी पापा सही कह रहे हो, नहीं कराऊंगी आगे से. बट अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट भी करो, हाँ आप सही कह रहे हो, करना बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने बहुत मदद कराई मेरी, आई वांट कि आप आगे से ऐसे करो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर फॉर.
तो उससे क्या होगा, उनको भी लगेगा हाँ मुझे हेल्प करनी चाहिए, एंड वो अपने आप भी आपका स्टैंड लेंगे कि यार मम्मी क्या हो गया, ठीक है, उससे आप दोनों का रिलेशनशिप भी आपस में अच्छा होगा. शो दैट अप्रिसिएशन एंड एक्नॉलेजमेंट. ओके, so the key thing over here is हमने आज पूरे इसमें मतलब जो one thing that I would like to summarize with is that you are never alone. Parenting is tough, it is hard, and sometimes you may feel that you are alone, you're going through a very difficult time. But always remember, you are never actually alone, and support is always available. It can be in the face of your partner, your children themselves. They can sometimes turn out to be very helpful in the whole parenting process itself, and your family members. आपके joint family है, कई बार helpful होते हैं. Just remember then there are support groups like Parent Eva available. आपके पास और फ्रेंड ग्रुप्स हैं, आप उनसे बात कीजिए. यू नो आपके सिबलिंग्स हैं, आपके सिस्टर्स ब्रदर्स हैं, आप कभी नहीं कर पा रहे हो, आस्क देम टू हेल्प यू आउट. ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जस्ट रिमेंबर, इट मे सीम हार्ड बट इट इज जस्ट अ फेज, and it is the best phase. Like I think everybody who's a parent will agree, it may seem tough but it is literally one of the best journeys, best phases of your life. And once the most part of it is over, you feel ki khatam ho gaya itna bada wo. So just be there, ask for help anytime आपको lonely feel हो रहा है. Seek support, professional help लीजिए, counselor, psychologist and support groups join कीजिए, जहाँ पे आपको advice भी मिलेगी. You will feel heard और आपको पता चलेगा you're not the only one, other parents are also going through similar things. And I would like to thank all of you for joining today. Maitri ma'am, Deepti ma'am, Vineet ma'am, Pavan ma'am, thank you so much for joining us today. आई थिंक आपने काफी आज इंटरैक्टिव सेशन था. यू वर टाइपिंग इन द चैट बॉक्स, हमें काफी आपके इनसाइट्स भी मिले. बट बिफोर आई रैप दिस अप, मैं कुछ फीडबैक जानना चाहूंगी. इफ एनीबडी वुड लाइक टू शेयर एनी फीडबैक, explain कुछ भी, any thoughts that you have, any inputs, anything. Anybody would like to share anything at all? कोई doubts हो, कोई queries, any questions, anything? Maitri ma'am, okay. Maitri ma'am writes, thank you for such an insightful session. Very relatable content and techniques were shared in easy and practical manner. Thank you so much, ma'am. I'm glad we could help in any way. And you can reach out to us anytime, any day, any problem that you're facing. But before we wrap up, I would just like to give a heads up. So this week we focused on parenting stress, mental load, and burnout, right? Next week, we would like to go into positive parenting. Maitri ma'am pointed for the point of positive parenting as well in one of these slides. So, ma'am, next week we are going to focus on positive parenting and how it can, help children become more confident and resilient, and help parents as well. I'll be sharing practical insights to guide all of you. How you can guide your children with love rather than fear, and how small changes in your approach in parenting and your approach towards your children can make huge difference in their behavior and confidence, and also help you feel better about yourself as a parent. So I hope all of you will join us next week also. The link for the webinar of positive parenting will be shared on the group, and I really hope all of you join us again, and then we can have another very insightful and interesting session. Thank you so much for joining us today. Thank you, Deepti ma'am, for joining us.